Om Shanti. Happy Diwali and Namaste to you all. Diwali is the most auspicious time of year in the Hindu calendar. We've had the killing of Ravan, the end of all evil, and after all evil has been destroyed and banished from the world, a new world begins. And so our New Year's calendar begins at Diwali, and it's the beginning of a new chapter, a new era. And yes, of course, it's a memorial of the end of the old cycle and the beginning of the new cycle. But quite apart from that, I'm seeing that the image of light, the awareness of light, is something which is universal. People of all traditions love light. Light symbolizes the sunshine. Light symbolizes the energy, the power of the sun, but also light symbolizes enlightenment. Light symbolizes the awakening. When the day begins, the sun has risen, and so the light wakes up even those who have been sleeping. And so light carries many beautiful connotations, and in contrast, of course, darkness represents the stumbling, the falling, the crying, all the bad things that happen. But we're celebrating the light. And not only is it a memorial of the old age, the Iron Age, the age of darkness, moving into the age of truth, the beginning of Satyug, the golden age. But more importantly, perhaps for us at this moment, it symbolizes the awakening of the soul, the light that's lit within. When we recognize ourselves through that light, that truly is enlightenment. When this little lamp of ours starts shining brightly, the light has been ignited with knowledge, then we see firstly ourselves, but also then we see the divine. But our vision and attitude changes completely, because now I see you not just in your physical form, in the awareness of the eternal identity of the self as a soul, the being of light. I see you also as my brother, a being of light. And so external differences are totally forgotten. They melt away, they dissolve. And so whether it's color, caste, creed, position, gender, age, all of those things are irrelevant, because now with this light, not only am I seeing who I truly am in my eternal form and identity, but I'm also seeing you as that eternal being. So this is truly a new beginning, one in which we can forget about all the divisions and conflicts that have separated us from each other, not only on a personal level, but also on a collective social level, but even on a national level and an international level. And so Diwali holds a secret through which truly there can be peace and happiness restored in this very, very sad and divided world of ours. And so let's celebrate Diwali in that awareness of the truth, the light that can enlighten us and carry us forward. And a beautiful symbol at Diwali. From one lamp, you light many other lamps. So just one individual who has enlightenment can light the light of many, many others also. And so begin with yourself, begin with your family, and of course each one of your family members will then enlighten others too. And so let's celebrate Diwali with that inner joy, that inner happiness, so that truly we can begin a new era in which there's light in our minds, in our hearts, and in our behavior. A very happy Diwali, together with enjoying all the sweets and the new clothes and all the things that are going to happen in your homes and families. But always remember, keep this light shining brightly so that truly there can be that inner joy
that lasts not just for 1 day or the 3 days of Diwali, but it lasts through the whole year and beyond for you. So greetings to each and every one of you. Om Shanti. भारत में त्योहारों का बहुत विशेष महत्व होता है, क्योंकि त्योहार हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। तो हम और त्योहार साथ साथ चलते रहते हैं। हाँ, यहाँ पर आगे एक जगह खाली है, तो आप देखेंगे कि जितने भी भारत के त्योहार हैं और जो भी सीक्वेंस है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य जुड़ा हुआ है उन त्योहारों के साथ साथ और सीक्वेंस में भी। तो जो दीपावली का त्यौहार है, ये एक्चुअली शुरू हो जाता है जैसे ही दशहरा पूरा होता, दिवाली का त्यौहार शुरू हो जाता है देखा जाए तो, क्योंकि तैयारी शुरू कर देते हैं। जैसे ही रावण मरता है, रावण का मरना क्या होता है? राम का जीत, यानी असत्यता के ऊपर सत्यता की जीत का प्रतीक। तो भले रावण मर गए, लेकिन दिवाली आने में थोड़ा समय लगता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो बीच का समय होता है वो क्लीनिंग का समय होता है, क्लियर अप का समय होता है। तो ऐसे ही दिवाली नहीं मनाते, एटलीस्ट कुछ ना कुछ घर में क्लीन करेंगे, कहा जाता है लिपाई पोताई की जाती है। तो ये सब करने के पहले ज़रूरी है सफाई करना, तो सफाई पहले चाहिए। तो जैसे ही सफाई होती है, आप देखेंगे ये दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो एक साथ और 5 त्योहारों को लेके आता है। हाँ, अपने आगे पीछे लेके आता है त्योहारों को, साथ साथ कुछ त्योहारों की गैदरिंग होती है। तो ये एक्चुअली प्रतीक है, देखो, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का। पहला दिन होता है हेल्थ का, जो धनतेरस के रूप में मनाते हैं, धन्वंतरी देवता के यादगार के रूप में मनाते हैं। कहा जाता है कि जब सागर मंथन हुआ था तो उससे धन्वंतरी जी निकले थे अमृत का कलश लेके, जिनकी यादगार के रूप में ये त्यौहार हम मनाते हैं। तो ये त्यौहार प्रतीक है हमारी हेल्थ का। जब तक हेल्थ नहीं अच्छा है, कितना भी वेल्थ हो, हैप्पी हो पाएंगे या हैप्पीली किसी से मिल पाएंगे? जब तक हेल्थ नहीं है तब तक खुशी नहीं होगा, कितना धन है तो भी खुशी नहीं होगी। तो नए साल में खुशी की मुबारकबाद देते हैं ना, और भाई दूज में गले मिलते हैं। फिर आजकल तो देखो, किसी को थोड़ा सा भी फ्लू हो तो गले भी नहीं मिलते हैं, कहते दूर रहे बाबा। 2 चेयर छोड़ के बैठते हैं, 2 रो छोड़ के बैठते हैं, तो ना गले मिल सकते हैं ना कोई मिलने देता है। तो इसलिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों चाहिए, और ये दिवाली त्यौहार इसका प्रतीक है। तो सबसे पहला दिन जो धनतेरस के रूप में हम मनाते हैं, तो जब अमृत मिलता है, ये सिर्फ हमारी शारीरिक हेल्थ की ही बात नहीं है, बल्कि मानसिक हेल्थ की भी बात है। जिस तरह से हम शरीर के लिए बहुत कुछ सोचते हैं कि रात को लेट नहीं खाएं या कम खाएं, हेल्दी फूड खाएं, बाहर का नहीं खाएं, कितना कुछ ध्यान रखते हैं अपने शरीर के लिए, विटामिन्स ले, ये लें वो ले, अपने आप को फिट फाइन रखें। तो क्या इतना ही हम अपने मन के लिए सोचते हैं कि मैं अंदर से भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचूं, किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचूं, किसी को बद्दुआएं नहीं दूं? तो हम अंदर से कितने फिट है। जिस तरह से बाहर का फिटनेस क्या होता है, अगर कोई बीमारी आई, जैसे किसी को कुछ हुआ, चलो किसी को फ्लू भी हुआ, आप उसके बाजू में बैठो, आपको फिर भी वो बीमारी नहीं लगेगी, अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है तो, और आप प्रिकॉशंस ले रहे हो तो उसी तरह कभी हम ऐसे लोगों के या ऐसे माहौल में चले जाते हैं जहाँ बहुत नेगेटिव या व्यर्थ सोचने वाले, बोलने वाले होते हैं, तो क्या हम वहाँ से सेफली फिट होके आ सकते हैं? तो इतना हम फिट एंड फाइन है। तो ये जो त्यौहार हम मना रहे हैं, ये हमें सिखाते हैं। एक तो देखो, वैज्ञानिक रीति से भी, साइंटिफिक रीति से भी कहा जाता है कि मौसम बदलता है, तो ये धन्वंतरी या धनतेरस का जो त्यौहार है हमें याद दिलाता है कि हमें कैसे तंदुरुस्त रहना है,
इसके लिए आप देखेंगे जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं भारत में विशेष धन्वंतरी देवता का फ़ोटो रखते हैं या मूर्ति रखते हैं रिसेप्शन एरिया में या कोई भी जगह मिलेगा आपको, ताकि जिस तरह से अमृत पीने से देवताएं अमर हो गए थे उसी तरह हमारा भी, हाँ हम आत्माएं हैं तो अमर, परंतु हम वो अमरत्व को, आजकल किसी को ज़्यादा उम्र का भी आशीर्वाद दो तो भी डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता नहीं कैसी लाइफस्टाइल होगी एंड तक। हाँ, 2 घुटन का ऑपरेशन, 2 हार्ट का ऑपरेशन, ब्रेन का ऑपरेशन, आँख का ऑपरेशन, कितना कुछ हम तोड़ फोड़ करके रखते हैं शरीर को, काट पुट करके, तो भी डर जाते हैं। तो लेकिन देवताओं की लाइफस्टाइल, वो अमर थे लेकिन कितनी अच्छी तरह से जिए। तो वैसा जीवन जीने का हमको ये धनतेरस का त्यौहार सिखाता है। तो उसके लिए सिर्फ शारीरिक मानसिक ही नहीं बल्कि स्थूल भोजन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। तो भोजन भी सात्विक शुद्ध, आजकल फास्ट फूड का ज़माना है और जितना फास्ट फूड होता है उतना फास्ट हेल्थ बिगड़ता है। पहले शांति से चूल्हे में खाना बनता था, भोग लगता था, आराम से खाते थे तो हेल्थ भी उतना अच्छा रहता था। तो ये हर चीज़ जो है हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देती है। फिर दूसरा त्यौहार आता है धनतेरस के बाद, नरक चतुर्थी का आता है, जो हमें सिखाता है, ये पौराणिक कथाओं के हिसाब से 2-3 इसके अंदर स्टोरी है नरक चतुर्थी की। एक तो नरकासुर के बारे में जो काफ़ी फेमस है, हम सभी जानते हैं कि किस तरह से श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा जी के साथ मिलकर नरकासुर का वध किया और राजाओं को और बहुत सारी राजकुमारियों को उनसे छुड़ाया। फिर दूसरी एक कहानी आती है राजा बलि की, कि जब वामन अवतार में श्री कृष्ण जी ने उससे सब कुछ ले लिया था, उस समय राजा बलि ने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आज के दिन जो भी याद करेगा आपको या जो भी करेगा उसको कुछ ना कुछ प्राप्ति ज़रूर होगी, वो यम यातना से मुक्त हो जाएगा। उसके लिए नरक चतुर्थी। और एक कहानी इसके उपलक्ष्य में जो काफ़ी बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, एक रति नाम का एक ब्राह्मण था जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई पाप कर्म नहीं किए थे, परंतु जब वो शरीर छोड़ते हैं तो उनको यमदूत नरक की ओर लेके जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने तो अपने जीवन में कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, मुझे यम लोग मुझे नरक की ओर लेके क्यों जा रहे हैं। तब उसे बताया जाता है कि आपके घर एक ब्राह्मण आए थे और उस दिन वो भूखे पेट चले गए, आपने कुछ खिलाया नहीं। तो उन्होंने 1 साल का समय मांगा और उसके बाद उन्होंने जो है ब्राह्मणों के लिए काफ़ी कुछ किया। तो कहा जाता है वो उस दोष से भी मुक्त हो गए। तो कहने का भाव ये है, एक तो नरक चतुर्थी के दिन खास करके भूत की पूजा की जाती है। कहते हैं कई लोग पूजा करते हैं काली विद्याओं के लिए, कई लोग पूजा करते हैं भूत भगाने के लिए, कि हमारे घर में कभी भूत आए ही नहीं, है ना। तो उसके लिए भी नरक चतुर्थी के दिन पूजा की जाती है। तो भूत क्या है? भूत क्या है? जो डराता है ना। भूत दिखता नहीं है लेकिन डरावना भी होता है। किसी ने देखा है भूत? हाँ, दिखता नहीं है लेकिन हम डरते सभी है कि भूत ना आ जाए, हमारे पास नहीं आए। तो कितना, तो ये जो भूत जो है, चलो जो भी रीति से भूत है वो है, लेकिन ये हमारे अंदर के भी जो नेगेटिव संस्कार हैं, जो बुराइयां हैं, ये भी तो एक भूत ही है ना, जो हमें भी दुख देता और सामने वाले को भी दुख देता। क्रोध भी क्या है? एक भूत ही है ना। हाँ, भूत ही है ना। किसी के अंदर भूत आ जाए तो कैसा दिखता है? उसके पास कोई खड़ा रहना चाहेगा? चाहेगा? भाग जाएंगे ना। अब और उसी तरह जिसको बहुत गुस्सा आ रहा है उसके बाजू में कोई खड़ा रहना चाहेगा? सोचेंगे इसको बड़ा गुस्सा आ रहा है, मैं थोड़ी देर खड़ी रहती हूँ इसके सामने। नहीं खड़े रहेंगे ना, भाग जाएंगे कि मेरे ऊपर अटैक ना कर दे ये क्रोध का भूत। तो ये जो हम स्थूल रीति से हर चीज़ करते हैं, लोग क्या करते हैं, घरों की पूरी सफाई करेंगे काली चौदस नरक चतुर्थी के दिन,
और दिया और वो सब लेके टिबाटे पर डालेंगे कि हमारे घर कोई भूत ना प्रवेश करे, कुछ ना आए, ये स्थूल रीति से। लेकिन अंदर जो भूत बैठे हैं, हाँ, अंदर जो भूत बैठे हैं उसके लिए क्या कर रहे हैं? कभी कभी अचानक से जागृत हो जाते हैं ये भूत, और इनके लिए कोई श्राद्ध कर्म भी नहीं है। इनके लिए खुद ही आपको अपना श्राद्ध कर्म करना पड़ेगा, इनों का निकालना पड़ेगा। तो ये हमें याद दिलाता है। त्रिबाटा आप देखो, ये प्रतीक एक होता है 3 देवताओं का, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, जो स्थापना, पालना और विनाश के प्रतीक है। तो जिस तरह से शंकर विनाश के प्रतीक हैं, उसी तरह उन्हों से वो क्वालिटी उठा के हमारे अंदर के नेगेटिव और बुराइयों का हमें विनाश करना है। दूसरों के नेगेटिव बुराई, दूसरे का भूत भगाने नहीं जाना, नहीं तो वो आपके ऊपर आ जाएगा। अपना भूत भगाने की कोशिश करना, दूसरों को नहीं कहना कि तुम्हारे अंदर क्रोध है निकालो, तो वो निकलेगा और आप में घुसेगा। तो अपना पहले चेक करें आप। इस संस्था की सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जब मैं छोटी थी तो सुनी थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी और अट्रैक्ट भी किया, कि कभी भी ये नहीं कहते कि दूसरों को बदलो। हमेशा ये कहा जाता है स्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हाँ, तो जब हम बदलेंगे तो दूसरों को बदल सकेंगे या दूसरे भी बदल सकेंगे। तो शंकर जैसे उनके गुणों, उनसे उनके जैसा तपस्वी बनकर अपने अंदर के नेगेटिव और बुराइयों को भगाना, और फिर ब्रह्मा जैसा गुणों की स्थापना करना, अपने अंदर गुणों की स्थापना करना, गुणों को लाना और स्थापना करने के बाद उन गुणों की पालना भी करना, विष्णु के समान उनकी पालना करना, यानी दूसरों को भी देना, बांटना उन गुणों को। तो इसके लिए कहा जाता है टिबाटे पर जाकर दिया रखते हैं, ताकि उनके जैसा हमारे अंदर, उन्हों के जैसा गुण आए और हम अपने अंदर से इन भूतों को भगा पाए। तो सिर्फ क्रोध ही नहीं है, अहंकार भी एक बड़ा भूत है, काम विकार भी बहुत बड़ा भूत है, लोभ भी बड़ा भूत है। जो तो ये सारे भूतों को हम भगा सकते हैं जब हम उनके जैसा इन गुणों को धारण करें। तो ये त्यौहार प्रतीक है हमारा इन सब चीज़ों का। फिर आता है तीसरे दिन, कौन सा त्यौहार आता है बताएं? इतना धीरे धीरे उमंग उत्साह है दिवाली का। सबसे, दिवाली तो सारे त्योहारों का राजा है ना। और कितनी तैयारी करते हैं दिवाली में। तो फिर तीसरा दिन आता है दिवाली, जिसमें लक्ष्मी जी की पूजा होती है। लक्ष्मी जी यानी कहा जाता है धन की देवी, लेकिन उसकी पूजा के लिए भी कहा जाता है सफाई बहुत ज़रूरी है। जब तक सफाई नहीं होगा तब तक लक्ष्मी जी नहीं आएंगे। लक्ष्मी तो लक्ष्मी, लेकिन लक्ष्मी जी के साथ साथ आप देखेंगे गणेश जी की भी पूजा होती है। सिर्फ धन की ही इम्पोर्टेंस नहीं है, धन जरूरी नहीं है, लेकिन धन के साथ साथ क्या चाहिए? बुद्धि भी चाहिए। गणेश जी को बुद्धि का देवता कहा जाता है। नहीं तो धन बहुत है लेकिन बुद्धि भ्रष्ट है तो धन का कैसे उपयोग होगा? धन का दुरुपयोग हो जाएगा। तो इसलिए लक्ष्मी पूजन जो होता है, वो गुणों का, अपने लक्ष्य को याद रखना कि मेरा लक्ष्य क्या है, इस मनुष्य जीवन में आने का मेरा लक्ष्य क्या है। धन कमाना, आजकल देखो जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हर चीज़ का, जो त्योहारों का या कोई भी चीज़ का आप देखोगे मीनिंग उसका बदलता जाता है। कहते हैं परंपरा से चला आया है और मीनिंग भी बदल गया है। एक समय था, अभी इसके बाद लक्ष्मी पूजन के साथ चोपड़ा पूजन भी होता है, नए साल का पूजन भी करते हैं। बिजनेसमैन के लिए बड़ा दिन होता है। तो पहले एक समय था जब लोग कहते थे कि विश्वास के ऊपर दुनिया चलती है, हर चीज़ विश्वास में होता था, लिखत की ज़रूरत नहीं, मैंने ज़बान दे दी है मना, काम हो गया। लेकिन आजकल कितने सारे एग्रीमेंट साइन करने पड़ते हैं, तो भी डर लगता है पता नहीं ये कब धोखा दे दे, है ना। तो एक सिंपल सी आपको कहानी सुनाती हूँ। एक बार बिजनेसमैन, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, अपने बच्चे को कहता है कि तुम भी अभी बिज़नेस ज्वाइन करो और थोड़ा सा समझ लो। तो बच्चा बड़ा एक्साइटेड रहता, कहता हाँ क्यों नहीं, मुझे आप कुछ टिप्स दो, कुछ सिखाओ कि मैं क्या करूं।
कैसे बिज़नेस को आगे बढ़ाऊं, आपसे भी ज़्यादा ऊंचा लेके जाऊं। तो वो कहते ठीक है चलो आज आपको हम सिखाते हैं। तो रात को 12 बजे पिताजी जो है वो बच्चे को लेके जाते हैं ऊपर, लेके जाते हैं टेरेस में। और टेरेस में एक छोटा सा 10 फीट हाइट का कुछ बना हुआ था, दीवार होता। कहते खड़े हो जाओ। फिर उसको कहते हैं कि क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? वो कहता है हाँ। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? बच्चा कहता है हाँ। तो तुम वहाँ से कूदोगे तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पकड़ लूँगा? तो कहता है ऑफ कोर्स पकड़ लेंगे। तो क्यों? क्योंकि आप मेरे फादर हैं, मुझे कभी चोट नहीं पहुँचाएंगे, आज तक आपने कभी नहीं पहुँचाया। तो पिताजी को बड़ा अच्छा लगता है। फिर वो क्या करते हैं, वो लाइट स्विच ऑफ कर देते हैं, अंधेरा हो जाता है। अब वो उस लड़के को कहते हैं कूदो। लड़का कहता मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है, कैसे कूदूं? कहते कोई नहीं, दिख नहीं रहा है लेकिन तुम्हें सुनाई दे रहा है? तो कहा हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ। तो कहते तुम्हें भरोसा है ना मैं पकड़ लूँगा क्योंकि मुझे तुम दिख रहे हो? तो कहता है हाँ भरोसा है। तो कहते हैं चलो कूदो। कूदता है और फादर नहीं पकड़ता। बच्चा गिरता है नीचे, चोट लगती है, रोता है। कहते हैं आपने कहा था पकड़ लूँगा। तो कहा नहीं, ये बिज़नेस का पहला रूल है कि किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। तो आप सोचिए, जिस बिज़नेस की शुरुआत जहाँ बाप बच्चे को सिखा रहा है ट्रस्ट नहीं करो, और ऐसे दुनिया में आप कहाँ से गुणों को, धन है लेकिन धन के साथ आपके पास गुण नहीं है, वैल्यूज़ नहीं है, क्वालिटी नहीं है, वैसा धन और वैसा जीवन का क्या फ़ायदा? हाँ, तो धन के साथ साथ हमें गुणों का भी देखो। कहा जाता है सागर मंथन से लक्ष्मी जी निकली थी। तो सागर मंथन क्या है? असुर और देवताओं ने मंथन किया था सागर का। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, असुर माना क्या? नेगेटिव विचार, नेगेटिविटी, और देवताएं माना पॉजिटिविटी। जब इसका मंथन होता है तब जाके कभी जहर निकलेगा, कभी अमृत निकलेगा, और कभी लक्ष्मी निकलेगा, माना गुण निकलेंगे, क्वालिटीज़ निकलेगी जो हमें अपने जीवन में धारण करना है। इसी दिन चोपड़ा पूजन भी होता है। बिजनेसमैन अपना पुराना खाता बंद करते हैं और नया खाता शुरू करते हैं, स्वस्तिक बनाते हैं, शुभ लाभ लिखते हैं, नया खाता शुरू करते हैं। तो ये हमें सिखाता है कि अभी तक भी जो भी हमारे कार्मिक अकाउंट थे, किसी के साथ हमारा कुछ हुआ, अनसुनी हुई, बोला हुआ, किसी के लिए व्यर्थ चल रहा है, किसी के लिए नेगेटिव चल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, वो सब चोपड़े को अभी पूरा करो और अभी नया अकाउंट शुरू करना है, अच्छाई का, पॉजिटिविटी का। देखो, जब आप कोई भी चीज़ बंद करते हैं ना, चाहे हर चीज़ को आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आप कंप्यूटर बंद करते हो, शट डाउन करते हो, तो ऐसे ही नहीं करेंगे ना, सारे विंडोज़ क्लोज करेंगे, सारे फाइल्स क्लोज करेंगे, फिर जाके शट डाउन करेंगे, राइट? अगर ऐसे ही फोर्सफुली किया तो क्या होगा? कुछ फाइल्स मिसिंग हो जाएंगी, हाँ, या कभी कभी डैमेज भी हो सकता है। तो हर चीज़ को, किसी के साथ आपका कुछ भी है, हर चीज़ को शट डाउन कर दें, क्लोज कर दे, उसको लेट गो करे या फॉरगेट करे। अभी आने वाला जो इसके बाद इंदु बहन का टॉक होगा, मैं उनको कहेंगी कि थोड़ा इसको ब्रीफली थोड़ा डिस्क्राइब करें कि किस तरह से हम अपने नेगेटिव संकल्प को, मन को क्लीन और क्लियर करें और कैसे दूसरों को फॉरगिव करें और बातों को लेट गो करें। तभी ही जाके नया चोपड़ा शुरू हो सकता है। जब तक पुराना है तो नया शुरू नहीं हो सकता, उसमें शुभ लाभ नहीं होगा, हाँ, उसमें शुभ लाभ नहीं होगा। तो लाभ कब होगा? लाभ कब होगा? जब लाभ का हम उल्टा करेंगे, भला करेंगे, तब जाके लाभ होगा। क्योंकि हम किसी का भी भला करेंगे तो उसमें शुभ ही होगा और लाभ ही होगा। तो इसलिए खास शुभ लाभ लिखा जाता है। फिर उसके बाद का दिन जो है हम नए साल के रूप में, क्योंकि अकाउंट पूरा हो गया, नया दिन, नया साल, नई रीति से नई शुरुआत। तो नए साल के दिन क्या होता है? सभी को ब्लेसिंग्स देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, मुबारक देते हैं, साल मुबारक कहते हैं। तो साल मुबारक कहने के लिए कहते हैं या हम चाहते हैं उनका साल मुबारक हो? हाँ, कहा जाता है ना कि दुनिया अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है। हाँ,
पड़ोसी के सुख से ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। उसका किचन नया बना है, मुझे भी नया किचन चाहिए। उसके पास अच्छी गाड़ी है, मुझे भी नई गाड़ी चाहिए। उन्होंने नया घर लिया, मुझे भी नया घर लेना है। तो ये जब भावनाएं आ जाती है वो कभी भी हमें संतुष्ट या सुखी नहीं करेंगी। तो शुभ भावना शुभ कामना, जब ये अकाउंट्स पूरा नहीं होता है खाता पुराने साल का, तब तक अंदर से किसी को भी शुभ भावना शुभ कामना दे नहीं पाएंगे। इसलिए जो भी चीज़ें हैं अंदर, उसे भुला के अकाउंट पूरा करके नए साल नई शुरुआत, ये सिखाते हैं हमें हमारे त्यौहार। जब तक वो नई शुरुआत नहीं होंगी तब तक भाई दूज नहीं मनाएंगे, भाई दूज नहीं मना पाएंगे। भाई बहन की भावना या भाई भाई की भावना जागृत नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए दिवाली जो है वो 5 त्योहारों को लेके आके हमें यही सिखाती है कि पहला जो है वो हम अपने आप के अंदर से जब बुराइयों को, नेगेटिविटी को निकालेंगे, तब जाके आत्मा रूपी दीपक जागृत होगा, जलेगा। और हमारे जब दिए से दिया जलता है, देखो प्लास्टिक कैंडल से इसको लेके दूसरा दिया जलाने की कोशिश करो, जलेगा? नहीं जलेगा। हाँ, लेकिन जो स्थूल दिया होता है उससे ही दिया जलता है। तो आत्मा रूपी दीपक जब जागृत होता है तब जाके दूसरी आत्मा का, फिर आपके साथ जो है उनका भी दीपक जागृत होगा। तभी जाके हम नया साल नई रीति से मना पाएंगे और तभी ही हम सबके अंदर भाई भाई की भावना जागृत होंगी और हम एक नई दुनिया जी पाएंगे या नई दुनिया बना पाएंगे जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं हों। हम ये नहीं सोचे कि मैं अकेला क्या करूं, मैं बदलूं, मैं कब तक बदलूं। नहीं, अगर मैं बदला, ज़रूरी नहीं है कि सबके पीछे हम पड़े। देखो, मैंने एक बहुत सुंदर जब हम स्कूल में थे या बहुत सुंदर एक इंस्पिरेशन कहानी सुनी थी जो बहुत इंस्पायर्ड करती है। इंग्लैंड के ही एक भाई थे जिनका नाम डेरिक था, जो कि रनर थे। तो फ्रांस में उन्होंने ओलंपिक में ज्वाइन किया था, 400 मीटर दौड़ लगाने का गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो जब वो दौड़ रहे थे, बहुत आगे चल रहे थे, 150 की स्पीड में चल रहे थे, सबसे आगे थे, लेकिन अचानक से कुछ हुआ, उनके पाँव में क्रैम्प्स आया या कुछ हुआ, गिर गए और गिर गए बहुत ज़बरदस्त। सभी लोग आगे चले गए परंतु ये जो है ये गिर गए। फिर उठ ही नहीं पा रहे थे, काफ़ी देर तक नहीं उठ पा रहे थे। फिर बड़ी मुश्किल से उठा और चलने की कोशिश कर रहे थे, चल भी नहीं पा रहे थे, थोड़ा थोड़ा जंप कर रहे थे। तो सिक्योरिटी से कोई आया, उनको कहा कि आप ठीक नहीं फील कर रहे हो, चलो आप चले जाओ, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि वो उसको हाथ भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि अगर ओलंपिक में कोई किसी को थोड़ा सा भी हाथ लगाए हेल्प करे तो वो बाहर हो जाता है उसके रूल के हिसाब से। तो इसने कहा नहीं, मैं पूरा करूँगा अपना रेस। तो उसने कहा, लेकिन सब चले गए, कोई फ़ायदा नहीं। परंतु उन्होंने कहा नहीं, मैं रेस के मैदान में उतरा हूँ तो मैं पूरा करूँगा। सब चले गए, फिर भी ये जंप करते 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 उन्होंने रेस पूरा किया। और फ्रांस में 65,000 लोग बैठे थे, सारे लोगों ने खड़े रह के उनको स्टैंडिंग क्लैप किया। तो गोल्ड मेडल उन्होंने जीता नहीं, परंतु गोल्ड मेडल से भी बड़ा मेडल जीता। इसलिए ये नहीं सोचो कि सब दौड़ रहे हैं तो मुझे भी वैसा नहीं दौड़ना है। हाँ, तो सब दौड़ रहे हैं, सब ऐसा कर रहे हैं, मैं भी करूँ। अगर चूहों की रेस में चूहा बन के दौड़ेंगे तो जीतेगा कौन? जीतने के बाद भी चूहे ही कहलाएंगे। हाँ, जीतने के बाद बिल्ली तो नहीं कहलाएंगे, है ना? तो कुछ ऐसा करें हम जीवन में, अपने त्यौहार, ये जितने भी त्यौहार हैं, आप स्क्रिप्चर्स को देखो, पढ़ो, हमें यही सिखाते हैं कि हम कुछ अलग करें और कुछ नवीनता करें, अपने जीवन में लाएं। तो आज इस दिवाली से हम ये संकल्प करें कि मैं रोज़ एक गुण का दिया, एक वैल्यूज़ का दिया अपने अंदर जगाएगी। ये नहीं सोचो कि मैं मेरे बच्चे के अंदर जगाएगी, नहीं, पहले मैं करेंगी, मेरे अंदर जागृत करेगी, तो ऑटोमेटिक दूसरे का चलना शुरू हो जाएगा। रोज़ कोई ना कोई एक गुण लेवे। ये 5 दिन दिवाली के ये संकल्प करें, 5 अच्छे गुण आप चूज़ करें और रोज़ एक गुण रूपी दिया जागृत करें।
यहीं पर मैं अपना टॉक पूरा करती हूँ, क्योंकि आगे और भी सारे प्रोग्राम्स हैं। तो थैंक यू सभी को। ओम शांति। यह कथा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। भारतवर्ष का जग में गूंजा फिर से नाम। अयोध्यापति दशरथ के यहाँ जब जन्मे प्रभु श्री राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। युवावस्था में ही करने लगे लोगों का उद्धार, जिससे कुल गुरु वशिष्ठ हुए आनंद अपार। जनक नंदिनी सीता राम की जीवन संगिनी बनकर आई। उन दोनों की परछाई बनने की शपथ थी लक्ष्मण ने खाई। अंग सुगंधित मन आनंदित, अंग सुगंधित मन आनंदित, चहुर रंग बरसायो, चहुर रंग बरसायो रे। परंतु राम का राज तिलक कैकेयी को तनिक ना भाया। सीताराम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया। पंचवटी में शूर्पणखा का हृदय राम पर आया। परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम ने उसका विवाह प्रस्ताव ठुकराया। अहंकारवश वो अपने असुर रूप में आई। फिर सीता को हानि पहुंचाने उसने कदम बढ़ाया। तब लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट गिराया। ऐसा घोर अपमान दशानन रावण कर न सका सहन। साधु वेश धर उसने किया सीता माता का हरण। प्रभु रावण को सबक सिखाने राम ने उठाया ओम नमः शिवाय का मन में साधा एक ही लक्ष्य, होगा रावण के वंश का काम तमाम। स्वस्ति न इंद्रो धृतश्रवाः रणभूमि में लंकापति रावण से हुआ भीषण संग्राम। गिरा दशानन भूमि पर लेते हुए मुख से श्री राम का नाम। दशानन के हार के साथ हुआ दशहरा त्योहार का आरंभ। राम अभिषेक से हुआ भारत में राम राज्य का प्रारंभ।
ओम शांति। सबसे पहले तो सभी को दिवाली की, नए साल की, भाई बीज की, जितने भी त्योहार हैं, सभी त्योहारों की शुभकामनाएं। हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में हर मंथ हम एक टॉपिक लेते हैं, एक सब्जेक्ट लेते हैं और फिर उसके ऊपर हम पुरुषार्थ करते हैं। और ये नवंबर मंथ का जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाभदायक चल रहा है। आपको टॉपिक बताएंगी तो आप भी सुन के बहुत खुश हो जाएंगे। इस महीने का टॉपिक है दुआएं दो और दुआएं लो। तो आप सोचो रोज़ हम कुछ पॉइंट पढ़ते हैं, मीन सबको मिलता है, सुनते हैं, हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। तो मैं सोच रही थी दुआएं एक ऐसी चीज़ है जो गरीब भी मांगता है और अमीर भी मांगता है। लास्ट मंथ सितंबर मंथ में जब गणेश के दिन चल रहे थे, चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, ये सब दिन चल रहे थे, तो मुझे व्हाट्सएप में किसी ने एक फ़ोटो भेजा। फ़ोटो क्या था कि अंबानी और उनकी फैमिली गणेश पूजा के लिए बॉम्बे में गए थे। वो फ़ोटो भेजा था और साथ में लिखा था, आई वंडर व्हाट दे आस्क व्हेन दे डू पूजा फॉर गणेश। मीन्स ये लोग क्या मांगते होंगे जब श्रद्धा से, भावना से जाते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये लोग क्या मांगते हैं, इनके पास कौन सी कमी है। तो मेरा भी संकल्प चला कि गरीब भी मांगेंगे और अमीर भी मांगते हैं। कौन सी चीज़ मांगते हैं? हर एक कोई दुआएं मांगते हैं। तो दुआएं देने वाला, हम गुरुओं के पास जाते हैं, बड़ों के पास जाते हैं, माँ बाप से मांगते हैं। तो जो दुआएं देने वाला है उसने ऐसा कौन सा कर्म किया कि उसके पास वो अथॉरिटी, वो शक्ति, वो वाइब्रेशन दुआओं का मिले। हमको कैसे पता कि ये व्यक्ति जो मुझे दुआएं देगा वो वर्क होंगी। दुआएं माना हम जो बोलते हैं या सोचते हैं वो हो जाए, इसलिए हमको दुआएं चाहिए ना। वो जैसे बिजनेस क्लास वाले या फर्स्ट क्लास वाले जब ट्रैवल करते हैं ना, तो उनके लिए अलग होता है और उसका नाम होता है फास्ट ट्रैक। कभी कोई फास्ट ट्रैक में गए होंगे। तो दुआएं भी हमारी लाइफ में फास्ट ट्रैक का काम करती हैं। थोड़े दिन पहले जो हमारा रोज़ चलता है क्लास, तो ये सब जो पॉइंट्स हैं हमारे हेडक्वार्टर्स माउंट आबू से आते हैं। तो उसमें था कि दुआएं रॉकेट का काम करते हैं। रॉकेट बहुत फास्ट है, 1 सेकंड में यहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है। तो रॉकेट का काम करता है, माना हम बहुत सारे मेहनत से, पुरुषार्थ से, जैसे ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ नहीं करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन उस पुरुषार्थ में, उस मेहनत में सफलता मिले। नहीं तो क्या होता है, बहन मैं तो बहुत काम करती हूँ, बहुत पुरुषार्थ करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। तो हमको दुआएं चाहिए ताकि हमको सफलता मिले। तो जो व्यक्ति दुआएं देता है उसके पास कौन सी स्किल, कौन सी कला, कौन सी उसके अंदर विशेषता है जो वो दुआएं दे और सामने वाला
विश्वास करे कि हाँ ये हो जाएगा। तो कौन सी कला है, कौन सी बात है? साफ दिल। जो साफ दिल वाला व्यक्ति है ना, वो जो कहे वो हो जाएगा। भले आज नहीं होगा, लेकिन थोड़े समय के बाद या इवन बहुत समय के बाद वो बात उसके दिल से, साफ दिल से जो बोल निकले हैं वो होंगे ही होंगे। और फिर मैं सोच रही थी दुआएं लेने का, ब्लेसिंग्स लेने का तरीका क्या है? क्योंकि जैसे पहले बता रहे थे, लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी पूजा जब हम करते हैं तो किस ख्याल से करते हैं? सिर्फ और सिर्फ धन के ख्याल से। लक्ष्मी पूजा का मतलब ही है कि हमको धन मिले। तो अगर ऐसे होता तो गरीबी दुनिया में होती? गरीब लोग लक्ष्मी से क्यों नहीं मांग सकते हैं? मांग सकते हैं, लेकिन मिलता है? पॉवर्टी नाम होता क्या भारत में? क्योंकि पूरा भारत लक्ष्मी पूजा करता है। तो दुआएं कैसे मिलती है उसकी पूरी एक लिस्ट बनाओ अपने लिए। एक तरीका है कि परिवार में या कारोबार में या काम पर अगर कोई कुछ समझो रिक्वेस्ट करता है कि मेरे लिए ये करो, तो हम सोच में पड़ जाते हैं। ऐसे नहीं कि तुरंत हाँ जी बोले, क्योंकि जब हम हाँ जी बोलते हैं वो काम भले अभी तक किया नहीं है, सिर्फ हाँ जी बोलने से सामने वाले के दिल से दुआएं निकलती है। किसने हाँ तो बोला, फिर वो काम तो हो जाएगा, क्योंकि हाँ जी बोलने में बहुत ताकत है। माँ अगर अपने बेटे से कुछ मांगे और वो तुरंत हाँ जी बोले तो कितनी माँ की दुआएं बच्चों को मिलती हैं। तो एक है हाँ जी बोलना। दूसरा है कि जब हम संतुष्ट रहते हैं तो औरों की दुआएं ऑटोमेटिकली मिलती हैं। जो व्यक्ति कंप्लेन करता है, सब कुछ होते भी असंतुष्ट है, कुछ न कुछ मांगता ही रहता है, उसको एक दो कहेंगे, दूसरा भी दो मुझे कुछ, तीसरा भी दो, तो उस व्यक्ति के लिए दुआएं नहीं निकलती हैं। मीन्स अंदर से अच्छे वाइब्रेशंस, अच्छी फीलिंग कि ये तो हमेशा मांगता ही रहता है, इसको तो कभी संतुष्ट कर ही नहीं पाते हैं। तो वो जैसे ऐसे हाथ हो जाता है ना, माना छोड़ दो इसको, हमारे से नहीं होता है, आपको तो संतुष्ट हम कर ही नहीं सकते हैं। तो संतुष्ट रहने से मतलब मेरे पास जो कुछ है, जैसा भी शरीर है, जैसा जितना भी धन है, जैसे भी रिलेशनशिप्स हैं, उन सब में मुझे संतुष्ट रहना है। औरों की कंप्लेन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फलाना ऐसा है, ऐसा ऐसा है, एक दिन कंप्लेन करेंगे, दूसरे दिन आपस में बन जाती है। तो वो कंप्लेन करने का जो आदत बन जाता है, क्योंकि कंप्लेन करना एक आदत ही तो है, तो उससे भी सामने वाले से दुआएं नहीं मिलती हैं। तो संतुष्ट रहना और फिर संतुष्ट करना। कईयों को लगता है कि हम औरों को संतुष्ट कर ही नहीं सकते, ये व्यक्ति तो संतुष्ट होता नहीं है। लेकिन अगर मेरा दिल साफ है और मैंने जो भी उसके लिए किया सच्चाई से किया, उसमें कोई स्वार्थ नहीं था, तो सामने वाला संतुष्ट हो सकता है। तीसरा तरीका है दुआएं पाने का, माफ़ करना। कईयों को लगता है किसी को माफ़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है। कईयों से मैं सुनती हूँ कि हम क्यों माफ़ करें, गलती उसने की, माफ़ मैं करूँ,
दुख उसने दिया, माफ़ मैं करूं, क्षमा करूं, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन आप देखो, जब हम देवताओं की पूजा करते हैं, जब हम देवताओं के सामने जाते हैं, भले वो मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, लेकिन उसके सामने क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं देवताओं के सामने? हम कहते हैं क्षमा करो। और हमको फीलिंग आती है कि उनके वाइब्रेशन से, पत्थर की मूर्ति में भी वाइब्रेशंस है, हर एक चीज़ में वाइब्रेशंस है। तो हमको फीलिंग आती है कि वो हमको क्षमा करते हैं। मैंने किसको अगर क्षमा किया, माफ़ किया, तो मेरे व्यवहार में कुछ फ़र्क होना चाहिए। ऐसा न हो कि मैं कहूँ आई फॉरगिव यू और फिर भी नफ़रत रहे। ऐसा होता है ना, मैंने आई फॉरगिव यू शब्द बोल देते हैं, लेकिन अंदर नफ़रत बैठी है, नफ़रत गई नहीं है, वो शुभ भावना, वो शुभ अच्छा फीलिंग्स आई नहीं है। ऊपर ऊपर से माफ़ करते हैं कि देखो मैं कितनी महान हूँ, आपको माफ़ कर दिया, लेकिन अंदर से क्लियर और क्लीन नहीं बने हैं। तो माफ़ करना, उससे भी जिसने आपसे माफ़ी मांगी उसके दिल से भी तो दुआएं निकलती हैं। लेकिन समझो सामने वाले ने माफ़ी नहीं मांगी, ऐसे भी होता है, गलती की, दुख दिया, कुछ न कुछ धोखा दिया, माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। वो सोचते हम क्यों मांगे माफ़ी, मैंने जो किया ठीक किया। तो फिर हम क्या करें? दुआएं निकलेंगी दिल से? उसने धोखा दिया तो दुआएं निकलेंगी? क्या निकलेगा दिल से? दिल से क्या निकलेगा? आप सब बहुत शांत हो, नहीं अनुभव नहीं है, नहीं पता क्या निकलता है उस समय। क्या निकलता है? नफ़रत निकलती है। भले आप ठीक बोला, लेकिन आप ये भी सोचो, जो नफ़रत निकलती है वो नफ़रत किसको नुकसान करती है? खुद को। हमारे जो अंदर के वाइब्रेशंस हैं, अंदर के संकल्प जो है वो नफ़रत, ऐसे नहीं कि नफ़रत इतनी ही रहती है। पता क्या होता है? नफ़रत का बीज डल गया तो नफ़रत बढ़ती रहती है। इतनी नफ़रत बढ़ जाती है कि आपके पास दुआएं देने की कला, दुआएं देने की अथॉरिटी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जहाँ नफ़रत है तो वो व्यक्ति दुआएं दे ही नहीं सकता है। इसलिए देवताओं के पास जाते हैं, इसलिए भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि हमको पता है इनके दिल में, इनके मन में कोई नफ़रत नहीं है। तो क्षमा करो। सामने वाला भले ना मांगे, लेकिन मेरा दिल औरों के प्रति एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। घर की सफाई के लिए बहुत मेहनत करते हैं, क्या क्या केमिकल्स यूज़ करते हैं, महंगे महंगे केमिकल्स होते हैं, तो भी इससे साफ होता है। ब्लीच यूज़ करते, ये यूज़ करते हैं घर की सफाई के लिए। लेकिन मन की सफाई के लिए ब्लीच यूज़ किया है कभी? माना इतना अपने ऊपर मेहनत करना पड़े कि वो सारा अंदर का किचरा साफ हो जाए, तब हम लक्ष्मी का आह्वान कर सकते हैं। क्योंकि देखो, हमेशा बोला जाता है कि लक्ष्मी का आह्वान करना पड़ता है। एक है कि आप किसी को बुलाओ और दूसरा है कि आप उनके पास जाओ। तो फ़र्क क्या है? इजी कौन सा है? बुलाना इजी है या किसके पास जाना इजी है? बुलाना इजी है, फ़ोन करके बुला लो, आप मेरे पास आ जाओ, मेरे पास टाइम नहीं आपके पास आने के लिए। लेकिन भगवान क्या चाहता है? भगवान क्या चाहता है? हम उसको बुलाए या उसके पास जाए?
तो उसके पास जाने के लिए रास्ता पता है आप लोगों को? क्योंकि रास्ता पता होना चाहिए ना, जब किसके पास जाते हैं तो पोस्ट कोड सब कुछ सैटनाव होना चाहिए ताकि सहज हम उसके पास पहुंच जाएं। तो उसके पास पहुंचने के लिए भले मन में थोड़े कचरे वाले संकल्प हो, नेगेटिव संकल्प हो, लेकिन हम उनको थोड़ा साइड में करें। मन को साफ करना है ना, भगवान तक पहुंचने के लिए उसको कैसे संकल्प पसंद है हम, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ संकल्पों से हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। मंदिर में जाना ज़रूरी नहीं कि हम भगवान के पास पहुंचे, मंदिर में पहुंच के लेकिन भगवान के पास पहुंचे। तो जो हमारे थॉट्स है, विचार है, वो इतने शुद्ध हो, इतने प्योर क्लीन हो कि और पॉजिटिव भी हो, ताकि हम जल्दी भगवान के पास पहुंचे। अब मैं आपको 2 संकल्प सुनाएंगी, आप मुझे बताना, 2 संकल्प सुनाएंगी सिंपल, उन दोनों में से आपको कौन सा पसंद है। पहला संकल्प, मैं आत्मा हूँ, इसको हम कहेंगे संकल्प ए। सेकंड संकल्प, संकल्प बी, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये है 2 संकल्प, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। किसको संकल्प ए पसंद था? हाथ उठाओ, कोई तो उठाओ। आपको मेरी बात समझ में आई ना? ठीक है, किसको संकल्प बी पसंद था? वेरी नाइस। फर्क क्या था? फर्क कौन सा शब्द का फर्क था? बस एक गुण का फर्क था। एक गुण का फर्क से साधारण संकल्प को, मैं आत्मा हूँ, ये साधारण संकल्प को श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प कैसे बना दिया। जैसे कहा पहले, गुणों की ज्योति जगाओ, गुणों का दीपक जगाओ। हमारे पास यहाँ तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन 2 पोस्टर हैं, बहुत बढ़िया पोस्टर हैं। पोस्टर है नेगेटिव क्वालिटीज़ और पॉजिटिव क्वालिटीज़, और ये पोस्टर बहुत सस्ते हैं, यहाँ हमारे लिटरेचर में बिकते हैं, नीचे 1-1 पाउंड का होगा, मुझे लगता है ऐसे कुछ है। तो एक में झाड़ का पिक्चर है, दोनों में नेगेटिव ट्री, पॉजिटिव ट्री। तो नेगेटिव क्वालिटीज़ का बीज क्या है? क्योंकि बीज को ख़त्म करना है ना, एक नेगेटिव क्वालिटी को ख़त्म करेंगे तो बहुत मेहनत है, ऐसे जैसे कि नहीं, हमारा सिर दीवार से टकराते हैं तो दर्द किसको होता है? दीवार को या मुझे? तकलीफ़ किसको होती है? मेरे सिर को ही होती है। खून तो मेरे सिर को निकलेगा, दीवार का तो नहीं निकलेगा ना। तो नेगेटिविटी को निकालने में यही हाल होता है, हम उसको निकाल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि एक तो हम अंदर से नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, टू मच है हमारे पास। और फिर हम ये भी कहते हैं कि मेरे आजू बाजू, मेरे आसपास, मेरे काम पर, मेरे इधर उधर नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है। तो ये कहा गया कि मन को कैसे साफ करना है, ये बताओ। तो आप सबने रामायण देखी होंगी, किसने रामायण नहीं देखी? तो रामायण हो या महाभारत हो, लड़ाई देखा ना, उसमें लड़ाई है तो इस तरफ से भी एरोज आ रहे हैं, उस तरफ से भी एरोज आ रहे हैं, लेकिन बीच में मिलके एक दूसरे को काट देते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, माना किसी को नहीं लगता है। तो सामने से भी नेगेटिविटी आ रही है, दूसरे लोगों से
वाइब्रेशन आ रहे हैं नेगेटिविटी के, लेकिन हमको क्या करना है? वो वाइब्रेशन मेरे तक नहीं पहुंचे उसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे भी एक एरो पॉजिटिविटी का भेजना है। ऐसे नहीं कि खड़ी रहो और वाइब्रेशन मुझे टच करते रहे, नहीं, पहले से ही पॉजिटिविटी के वाइब्रेशंस औरों को भेजते रहो। लेकिन आप सब जब ट्रैवल करते हो, फ्लाइट में बैठते हो, तो वो एयर होस्टेस क्या सिखाती है? सिखाती है कि अगर कुछ हो जाए तो पहले अपने फेस पर मास्क डालो, फिर दूसरे का सोचो। तो स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसे है, पहले अपने ऊपर अपने थॉट्स जो है वो हमारे शरीर में वाइब्रेशंस बन जाते हैं। एक एक थॉट का वाइब्रेशन खुद के शरीर को असर करता है। तो पहले औरों को पॉजिटिविटी भेजने से पहले खुद को दो। आजकल जो डिप्रेशन कहो, एंग्जाइटी कहो, डर कहो, जो कुछ भी है, उसका कारण क्या है? खुद के लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं। डिप्रेशन वही तो है ना? सब कुछ है, लेकिन खुद के लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं। तो साधारण संकल्प, चलो नेगेटिव नहीं है, साधारण भी है, तो बहुत सारी मार्जिन है कि साधारण बहुत जल्दी नेगेटिव बन सकता है। इसलिए साधारण पर भी अपने संकल्पों को नहीं चलने दो। अगर आपको अपने लिए कदर है, अपनी वैल्यू है, अपने लिए प्यार है, तो साधारण को भी श्रेष्ठ बनाओ। और उसका तरीका मैंने सिखा दिया, कोई भी गुण उसमें ऐड करो, शांति का गुण हो या शक्ति का, पेशेंस का, सहन शक्ति का, कुछ भी गुण ऐड करो। और अगर आपके पास गुणों की लिस्ट नहीं है तो मैं आज रेकमेंड करती हूँ कि वो 2 पोस्टर आप खरीद लो और आप अपने बेडरूम में लगाओ, ताकि क्वालिटीज़ क्या है मालूम होना चाहिए। हर एक कोई कहते हैं गुण धारण करो, गुण धारण करो, गुणों का पता ही नहीं है। गुण किसको कहा जाता है पता ही नहीं है। तो मुझे याद है हमारा जो लंदन में ग्लोबल हाउस है, हेडक्वार्टर्स है, तो वहाँ रिसेप्शन में एक पोस्टर था जो वहाँ ही रहता था पोस्टर, और उसमें सिर्फ गुणों की लिस्ट होती थी। फ्लेक्सिबिलिटी, पेशेंस, लव, पावर, ऑल ये सब लिस्ट रहती थी। और एक भाई जो सुबह की क्लास में रोज़ आता था, निकलने से पहले वो गुणों की लिस्ट के सामने खड़ा हो जाता था। मैंने कहा आप रोज़ रोज़ यही पढ़ते हो? एक दिन मैंने कहा हाँ, मुझे ये बहुत हेल्प करते हैं। सिर्फ पढ़ रहा हूँ, इसमें भी मैं फील करता हूँ कि मेरे संकल्प बदल रहे हैं। सिर्फ पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ने से वो अंदर गया ना, रोज़ रोज़ पढ़ रहा है। मुझे लगता है 12 या कुछ तो गुण थे। तो ये भी एक पुरुषार्थ है। और कितना टाइम लगा 12 गुण पढ़ने में? आधा मिनट लगा, 1 मिनट लगा? टाइम तो नहीं लगा ना। तो सिर्फ जैसे कहा गुणों का दीपक जलाओ अंदर, एक अपने लिए जैसे एक प्रोग्राम बनाते, एक प्रोजेक्ट करते हैं। कोई भी गुण ले लो कि चलो आज मैं ये गुण प्रैक्टिस करेंगी। जैसे कहो कि आज मैं धीरज का गुण प्रैक्टिस करेंगी। सुबह उठ के ये ख्याल करो, आपके सामने पूरे दिन में इतने सारे टेस्ट आएंगे। क्या टेस्ट करेंगे? आपके धीरज को। तो फिर आपको पता पड़ेगा मेरे में कितना इम्पेशेंस है, मैं कितना जल्दी चिड़चिड़ापन में आ जाती हूँ। और चिड़चिड़ापन
क्रोध का छोटा बच्चा है। मीन्स शुरुआत वहाँ से होती है। तो दुआएं दो और दुआएं लो, ये एक बहुत सुंदर अपने लिए एक प्रोजेक्ट है और इसमें आपको बहुत प्राप्ति मिलेंगी। क्योंकि चलो आपने दुआएं दी, पर दुआएं लेना भी तो आना चाहिए ना। हमको सबको लेना अच्छा लगता है। कोई कुछ देता है तो हम खुश हो जाते हैं कि देखो ये कुछ दे रहा है। तो सामने वाला अगर अच्छा नहीं सोच रहा है मेरे लिए, तो हम क्या करना चाहिए? सामने वाला मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता है तो उसमें से भी मुझे क्या करना है? दुआएं लो। मीन्स उसकी नेगेटिविटी को परिवर्तन करके पॉजिटिविटी में उठाओ। ट्रांसफॉर्म, परिवर्तन। मुझे क्या अच्छा लगता है कि अपने लिए एक दो शब्द, जैसे वो एक दो शब्द आपके दिमाग में घूमते रहे। परिवर्तन। ये सोचना है मुझे बदलना है, न कि सामने वाले को बदलना है। नहीं तो क्या होता है, हम सोचते हैं मुझे बदला लेना है। मुझे बदलना है या मुझे बदला लेना है, कितना फ़र्क है। ये दोनों में कितना फ़र्क है। तो आप ये प्रसाद यहाँ से ज़रूर लेके जाओ, मुझे बदलना है, न कि मुझे सामने वाले को बदलना है। और हमारे परिवर्तन से जब हम बदलते हैं तो सामने वाले को क्या मिलता है? प्रेरणा मिलती है। क्या प्रेरणा मिलती है? कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। नहीं तो लगता है ना कि ये सामने वाला तो कभी नहीं बदलने वाला है। लेकिन मुझे एग्जाम्पल बनना है। मुझे पहले ट्राई करना है कि हो सकता है या नहीं। अपने आप को ये चैलेंज देना है। तो दुआएं दो और दुआएं लो। क्योंकि मैं सोच रही थी कि जितने भी हमारे त्योहार हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ अंदर खटकता है। जैसे कि शिवरात्रि का त्योहार लो, जब शिवलिंग के ऊपर दूध डालते हैं तो खटकता है थोड़ा अंदर कि ये दूध वेस्ट हो रहा है, दूध जा रहा है, बह रहा है। इससे अच्छा तो गरीबों को दूध दो। जब गणपति का त्योहार होता है, गणपति विसर्जन करते हैं तो सारे जो इन्वायरमेंट के जो ये प्रोटेस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि ये सारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं, सागर में डुबो रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है इन्वायरमेंट के लिए। जब दिवाली होता है, फटाके फोड़ते हैं तो भी कहते हैं पोल्यूशन होता है, अच्छा नहीं है इन्वायरमेंट के लिए। तो हर एक त्योहार में आजकल गिल्टी फील होता है। मिठाई खाते हैं तो थोड़ा गिल्टी फील होता है कि बाद में, चलो बाद में डाइटिंग कर लूँगी, दिवाली के बाद या क्रिसमस के बाद, न्यू ईयर पर पक्का प्रॉमिस अभी मैं डाइटिंग करूँगी। तो कुछ न कुछ गिल्टी फील होता है। लेकिन ये दुआएं दो और दुआएं लो के प्रोग्राम में, प्रोजेक्ट में आपको कभी गिल्टी नहीं फील होगा। आपको उल्टा बहुत ही खुशी होगी। और ये दुआएं जो निकलती हैं हमारे दिल से, दूसरों की निकलती हैं, दूसरों के लिए निकलती हैं, तो ये जमा होती है। जैसे अकाउंट की बात की कि लक्ष्मी पूजन के साथ साथ चोपड़ा पूजन भी होता है। देखते हैं ना कि लास्ट ईयर में कितना घाटा, कितना जमा, और अगले साल के लिए भी सारा करते हैं। तो मुझे क्या जमा करना है और मुझे क्या ख़त्म करना है? दुआएं जमा होती है। और अगर मैंने मेहनत करके, पुरुषार्थ करके
औरों की दिल की दुआएं ली हैं तो समय पर वो काम आती हैं। जब मुझे मेरे सामने कुछ तकलीफ आती हैं या कुछ ऐसी बातें आती हैं तो आप देखेंगे, आपने अगर किसी को मदद किया तो वो आपको समय पर मदद करेंगे। हैं? तो आपने दिया वो भी जमा होती है, आपने लिया वो भी जमा होती है। एक सूक्ष्म इनविजिबल बैंक है और वो बैंक यहाँ इस पृथ्वी पर नहीं है, वो बैंक ऊपर वाले के पास है। वो बैंक हमारी आत्मा में है, उसमें जमा होती है और जमा हुई दुआएं मुझे मदद करती है, औरों को भी मदद मिलती है। एक दूसरा तरीका है दुआएं जमा करने का और वो है बैलेंस। हर बात में बैलेंस चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सारा समय सोता रहे, 11, 12, 1 बजे उठे, तो आपको उसके लिए दुआएं निकलती हैं? निकलती है? हाँ, भले सोता रहे, आराम कर रहा है, बहुत मेहनती है, निकलती है ऐसी दुआएं? अगर कोई व्यक्ति सारा दिन खाता रहे, बैलेंस नहीं है। हर चीज में बैलेंस चाहिए। जब व्यक्ति में बैलेंस होता है तब दूसरों की दुआएं निकलती हैं। हमारे बैलेंस से औरों की दुआएं मिलती भी है कि ये सब है, अपने परिवार को भी देखता है, काम पर भी जाता है, सब कुछ स्पिरिचुअलिटी में भी है। हर बात में बैलेंस होना चाहिए तो औरों की भी दुआएं मिलती हैं। कुछ बात में अगर हम एक्सट्रीम है तो औरों की दुआएं निकलती हैं, सारा दिन यही करता रहता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो अभी हम 3 मिनट मेडिटेशन करेंगे और फिर मेडिटेशन के बाद भी एक बहुत सुंदर डांस रहेगा, इसलिए आप उठ नहीं जाना, प्रसाद भी लेके जाना है। ओम शांति। मेडिटेशन के लिए एकदम मन को शांत करना है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा अलग और ये शरीर अलग। मैं आत्मा एक लाइट स्वरूप, ज्योति बिंदु, एक सूक्ष्म शक्ति हूँ। आत्मा अपने में ही एक शक्ति है। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, शुद्ध, शांत, शक्तिशाली आत्मा। ये गुण मेरा खजाना है। मैं आत्मा
परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा मेरा परम पिता है। मुझ आत्मा को परम पिता से सुख, शांति, शक्ति ये वर्षे में मिला है। मुझे मांगना नहीं पड़ता है, ये है मेरे में, उसने दिया हुआ है। मैं भूल गई हूँ, अभी मुझे याद आया। सुख, शांति, शक्ति ये मेरा वर्षा है। इस वर्षे को जितना चाहूँ मैं बढ़ा सकती हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा खुद के लिए दुआएं करती हूँ कि अभी से मुझे शांत रहना है, मुझे शुद्ध रहना है। ओम शांति, ओम शांति। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। गुनगुनाए गाना गुनगुनारे गुनगुनारे गुनगुनाए गाना रे। गुनगुनारे गुनगुनारे गुनगुनाए गाना रे। गुनगुनारे गुनगुनारे
नजारा रे गुनगुना रे गुनगुना रे गुनगुना ये गाना रे गुनगुना रे गुनगुना रे गुनगुना ये गाना रे Om Shanti. Happy Diwali, everyone. Can we give a big round of applause to all of our dancers again? So the next part of the program will be, we want everyone in the audience to, so if everybody could stand up and प्लीज खड़े हो जाएं. it's an interactive performance, so the dancers will be doing very simple steps. We would like you guys to follow along and just have fun. तुम्हारे सबके लिए